Yes, students, in this session we have start wave motion. Wave is the motion of disturbance traveling in a medium. Yes, there are two types of wave: mechanical wave and electromagnetic wave. Mechanical waves are those waves which require medium for propagation. Example: sound wave and waves produced in a spring, waves produced in a water are called mechanical wave. And electromagnetic waves are those waves which do not require medium for propagation, called electromagnetic wave. Example of electromagnetic wave: gamma ray, X-ray, radio wave, etc. Yes. Now there are two types of mechanical wave. Yes, there are two types of mechanical wave: longitudinal wave. Yes, mechanical wave. Yes, mechanical wave classified in two types: longitudinal wave, and second transverse wave. Yes, longitudinal waves are those waves in which particles from medium vibrate in the direction of propagation of wave, called longitudinal wave. Longitudinal wave are also known as pressure wave. Example of longitudinal waves are sound waves and waves produced in a spring. If we study the properties of longitudinal wave, we observe that longitudinal wave can travel in solid, liquid and gaseous medium. In the propagation of longitudinal wave, the region where vibrating particles are come closer to each other, called compression, and the region where vibrating particles are moves away from each other, called rarefaction. So we can say that in longitudinal wave, compression and rarefaction are formed. The distance between two consecutive compression or rarefaction is equal to wavelength, and the distance between two consecutive compression and rarefaction is equal to half of wavelength. Yes. Now transverse wave, if we study transverse waves are those waves in which particles of medium vibrate in the perpendicular direction of propagation of wave, called transverse wave. Transverse wave, example of transverse wave are the waves produced in a vibrating string, vibrating wire, stretched vibrating wire produce transverse wave. Transverse wave is now properties of transverse wave. Transverse wave can travel in solid and at the surface of water. In the transverse wave, the maximum displacement in upward direction called crust and in downward direction maximum displacement called turf. We can say that in transverse wave, crust and turf are formed. The distance between two consecutive crust or turf is equal to wavelength, and the distance between two consecutive crust and turf is equal to half of wavelength. तो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेव मोशन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वेव। वेव है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस मूव करते हैं वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, तो उसे कहते हैं वेव। हम वेव दो प्रकार की होती है बेसिकली, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिनको प्रोपोगेशन के लिए, ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। यस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिनको प्रोपोगेशन एंड ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। यस। एग्जाम्पल हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो वेव्स, साउंड वेव जो हो गई, और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, एक वेव्स है मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेडियो वेव हो गई आपकी, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सभी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव की।
तो मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई किया जा सकता है दो प्रकार से, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स मीडियम के वेव के चलने की डायरेक्ट वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव के देखें तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग व्हेन वाइब्रेट and in which compression and rarefaction are formed, then longitudinal wave is formed. एग्जाम्पल longitudinal wave के हैं आपके साउंड वेव और बेस प्रोड्यूस्ड वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। अब बात करते हैं longitudinal वेव की प्रॉपर्टीज की। तो longitudinal वेव सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। longitudinal वेव जब मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं तो वह रीजन जिसमें कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कम क्लोजर आ जाते हैं उसे कहते हैं कंप्रेशन, और वह रीजन जिसमें वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एक दूसरे से अभी रहते हैं उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन यानी कि हम कह सकते हैं जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का होता है। यस, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन एंड रेयरफैक्शन इज द लो प्रेशर रीजन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम इसीलिए प्रेशर वेव भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन है रेयरफैक्शन के बीच की या रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस कहलाती है वेवलेंथ, और दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू होती है हाफ ऑफ वेवलेंथ। एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल ये थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन, हमने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज इक्वल टू वेवलेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिनमें कि वेव के चलने जिसमें कि पार्टिकल्स मीडियम के वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव के देखें तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या वाइब्रेटिंग वायर में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में और सरफेस ऑफ वाटर पे ट्रेवल कर सकती है। इस ट्रांसवर्स वेव में जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड क्रस्ट और मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टर्फ। यानी हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और टर्फ फॉर्म होते हैं। और ट्रांसवर्स वेव जब मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ के दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू होती है वेवलेंथ, और दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड टर्फ के बीच की डिस्टेंस होती है हाफ ऑफ वेवलेंथ। यस, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज हैव ए ट्रांसवर्स नेचर। यस, नाउ आफ्टर दैट we have discussed some terms related to wave motion. Yes, look. Yes, now look, terms related to wave motion. When wave travel in a medium, then the maximum displacement from its mean position called amplitude. Number of waves produced in 1 second is called frequency. The time taken to complete one wave is called time period, and the distance traveled by wave in its time period is called wave speed. Distance traveled by wave in its time period is called wavelength. And distance traveled by wave in 1 second is called wave speed. And the quantity which gives the instant position, angular position and linear position of the vibrating particle and wave at an instant time is called phase. Yes. तो देखो बच्चों, अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं वेव के ट्रेवल के, वेव मोशन से रिलेटेड। पहली एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कहलाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। एस, नाउ सेकंड है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट है टाइम पीरियड, this time taken to complete one wave is called time period. Time period, इसके बाद बात करते हैं वेव स्पीड की, distance traveled by wave in 1 second और यूनिट टाइम कॉल्ड वेव स्पीड। फिर है वेवलेंथ, distance
traveled by wave in its time period called wavelength. फेज वो क्वांटिटी जो किसी पार्टिकल वेव की इंस्टेंटेनियस एंगुलर और लीनियर पोजीशन को बताती है, दैट इज कॉल्ड फेज. नाउ लुक, देयर इज ए ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर द simple harmonic plane progressive wave. Yes, first of all, listen. What is the simple harmonic plane progressive wave? The wave which continuously move in the forward direction, continuously move in the medium, and the particles of medium undergo simple harmonic motion. Such a wave is called simple harmonic plane progressive wave. Yes. तो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. वो वेव जिसमें कि जो वेव कंटिन्यूसली मीडियम में आगे बढ़ती रहे और पार्टिकल्स मीडियम के सिंपल हार्मोनिक मोशन टेक प्लेस करें, ऐसे वेव को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. यस, नाउ ये एक ग्राफ है, ये हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ये देखिए पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड. फिर हाफ वेव कंप्लीट हुई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो. यहाँ जाके एक कंप्लीट वेव बनती है. तो ये कंप्लीट वेव यहाँ जाके पूरी हुई है. तो यहाँ से जो टाइम होगा ये कंप्लीट वेव का उसके टाइम पीरियड, और जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी वेव लेंथ. वेव लेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं. तो ये लैम्डा आपकी वेव लेंथ. यस, अब देखिए रिलेशन बिटवीन frequency, wave speed and wavelength. Bracket में lambda. So wave speed small v equal to distance divided by wave upon time. Now if distance divided by wave is equal to wavelength, then time is equal to time period. So put small d equal to lambda, then small t equal to capital T. So small v equal to lambda upon capital T. Put 1 upon capital T equal to small n, then v equal to n lambda. तो देखो बच्चों, ये हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया. तो वेव जब मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से जीरो हुआ, फिर रिवर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से जीरो हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ. तो अब एक कंप्लीट वेव बनती है अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करके. इसे कहते हैं एक कंप्लीट वेव. यस, जो एक कंप्लीट वेव जो फॉर्म हो रही है, तो जो टाइम लगेगा, जो टाइम टेकन है एक कंप्लीट वेव का, उसे कहते हैं टाइम पीरियड. और जो डिस्टेंस ट्रेवल वेव कर रही है कंप्लीट वेव फॉर्म होने में, उसे कहेंगे वेव लेंथ. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वेव के द्वारा ट्रेवल हो रही है वो होगी वेव लेंथ लैम्डा. अब देखिए ये रिलेशन, तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ स्पीड में, तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t अपॉन t. यदि d लैम्डा के इक्वल है तो स्मॉल t कैपिटल T के इक्वल है टाइम पीरियड के. तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल T, 1 अपॉन t को हमने स्मॉल r रख दिया, तो v इक्वल टू n लैम्डा. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव is equation of simple harmonic
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव simple harmonic plane progressive wave. So let us consider a simple harmonic plane progressive wave travel in a medium for which displacement distance graph is denoted by that. Then for particle P which have a distance x from the origin, the displacement is given by y equal to a sin omega t minus phi is put this is the equation 1 where a is the amplitude, omega angular frequency, t time and phi initial phase. Put phi equal to 2 pi x upon lambda. How we write 2 pi x upon lambda? Look, when one wave is complete then angular displacement is equal to 2 pi. And how much distance traveled by wave one wave complete? Lambda. So when distance traveled by wave is lambda, then angular displacement is 2 pi. So when 1 meter displacement takes place, then angular displacement is equal to 2 pi upon lambda. Now when phi angular displacement is when wave travel distance x, then how much displacement is take place? Angular displacement 2 pi x upon lambda, which is equal to phi. So angular position when wave travel distance x is equal to 2 pi x upon lambda. That's why in place of phi we put 2 pi x upon lambda. So y equal to a sin bracket omega t minus 2 pi x upon lambda. In place of omega we put 2 pi upon capital T minus 2 pi x upon lambda. So y equal to a sin 2 pi bracket small t upon capital T minus x upon lambda is where small t time, capital T time period, x distance traveled by wave, lambda wavelength, a amplitude and y displacement. तो देखो बच्चों हम इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव राइट कर रहे हैं. तो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाया प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए. अब किसी पार्टिकल p के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस phi इनिशियल फेज है. अब देखिए जब एक वेव कंप्लीट हो रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. जब वन वेव कंप्लीट होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है 2 पाई 360. और जब वन वेव कंप्लीट हो रही है तो लीनियर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? लैम्डा वेवलेंथ. तो वेवलेंथ लैम्डा जब वेव ट्रेवल कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई. तो 1 मीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा. इसलिए जब x डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा. तो x डिस्टेंस में पार्टिकल p है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट x डिस्टेंस फॉर पार्टिकल p के लिए हम पुट कर सकते हैं phi इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा. तो हमने 2 पाई x अपॉन लैम्डा रखा, ओमेगा को 2 पाई अपॉन t रखा, 2 पाई कॉमन लिया तो ये आया y इक्वल टू a sin 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा. जहां a एम्पलीट्यूड, t टाइम, कैपिटल T टाइम पीरियड, x डिस्टेंस और लैम्डा वेवलेंथ. अब देखिए ये इक्वेशन 2. अभी हम इक्वेशन तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा इन ब्रैकेट लैम्डा इनटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x. इन प्लेस ऑफ लैम्डा अपॉन कैपिटल T पुट in place of lambda upon capital T put small v. That is the equation 3. So y equal to a sin 2 pi upon lambda bracket vt minus x. तो देखो हमने लैम्डा कॉमन लिया, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी को v रखा तो साइन
2 पाई अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में dt माइनस एक्स, जहाँ v वेव स्पीड है, t टाइम है, x डिस्टेंस, लैम्डा वेवलेंथ, a एम्पलीट्यूड. Yes, so this is the equation for simple harmonic plane progressive wave. Now look next topic. Yes, now next topic is relation between phase difference and part difference. So look, for plane simple harmonic plane progressive wave, displacement y equal to a sin 2 pi bracket small t upon capital T minus x upon lambda. Equation 1. Now then from equation 1 phase phi equal to 2 pi bracket small t upon capital T minus x upon lambda. Yes, inside sine trigonometrical term there is an angle, so that whole term shows the angular position. So angular position denoted by the quantity is called phase. So phi equal to 2 pi of small t upon capital T minus x upon lambda. Now in a same time interval t, two waves travel. If one wave travel distance x1, another travel distance x2. So for one wave phase difference, phase phi 1 equal to 2 pi small t upon capital T minus x1 upon lambda. That is the equation 3. And for another wave, phase difference phi 2 equal to 2 pi bracket small t upon capital T minus x2 upon lambda. That is equation 4. Then phase difference delta phi equal to phi 2 minus phi 1. So delta phi equal to 2 pi bracket small t upon capital T minus x2 upon lambda minus 2 pi bracket small t upon capital T minus x1 upon lambda. Now take 2 pi common, so delta phi equal to 2 pi bracket small t upon capital T minus x2 upon lambda minus small t upon capital T plus x1 upon lambda. Small t upon capital T cancel, so delta phi equal to 2 pi upon lambda into bracket x1 minus x2. x1 minus x2 is the difference in distance traveled by the two waves, so it is known as path difference. So in place of x1 minus x2 we put delta x, so delta phi equal to 2 pi upon lambda into delta x, where delta phi phase difference, delta x path difference and lambda wavelength. तो देखो बच्चों, अब हम रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ड्राइव कर रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है y इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा. ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के अंदर एंगल होता है, और एंगल तो ये साइन के अंदर ये जो पूरी क्वांटिटी एंगल बता रही है, एंगुलर पोजीशन बता रही है पार्टिकल की. जो एंगुलर पोजीशन बताने वाली क्वांटिटी होती है वही फेज कहलाती है. ये पूरी क्वांटिटी फेज को बता रही है. फाई इक्वल टू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा. अब दो वेव हैं जो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं. एक ने x1 कवर की तो एक ने x2. तो फर्स्ट वेव के लिए 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x1 अपॉन लैम्डा, सेकंड वेव के लिए 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x2 अपॉन लैम्डा. हमने फाई टू फाई की वैल्यू रखी, सिंपलीफाई किया, 2 पाई अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में x1 माइनस x2. x1 माइनस x2 डेल्टा x कहलाएगा पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई कहलाएगा फेज डिफरेंस. नाउ लुक नेक्स्ट टॉपिक. Yes students, now look, relation between phase difference and time interval. So for plane progressive wave, displacement y equal to a sin 2 pi small t upon capital T minus x upon lambda. Then phase phi equal to 2 pi bracket small t upon capital T minus x upon lambda. Yes, then phase in a time t. Now in this condition, two waves
in the different time interval cover the same distance. So for first wave, phi1 equal to 2 pi t1 upon capital T minus x upon lambda, phi2 equal to 2 pi small t upon capital small t2 upon capital T minus x upon lambda. So phase difference delta phi equal to phi2 minus phi1. Put the value of phi2 and phi1 we put. Take 2 pi common, simplify 2 pi upon capital T bracket T2 minus T1. In place of T2 minus T1 we can put delta T. So where delta T time interval and delta phi phase difference and capital T time period. So तो देखो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल में. तो इसमें हमने लिया एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा. तो फेज phi इक्वल टू 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा. अब सेम दो वेव्स डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं. तो फर्स्ट वेव के लिए phi1, सेकंड वेव के लिए phi2, t1 टाइम दिया है फर्स्ट वेव के लिए t1 और सेकंड के लिए t2, डिस्टेंस सेम है x. तो फेज डिफरेंस डेल्टा phi phi2 माइनस phi1 वैल्यू को t सिंपलीफाई किया तो 2 pi अपॉन कैपिटल T इक्वल टू आया t2 माइनस t1 को डेल्टा t पुट कर दिया. तो ये आया रिलेशन फेज डिफरेंस ऑफ time interval के लिए. So students, in this session we have discussed about wave motion, terms related to wave motion, and we have discussed equation for displacement in for simple harmonic plane progressive wave and relation between phase difference and path difference and relation phase difference and time interval. Thank you.